ماں باپ کو ستانے والوں سن لو، تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی ہے، تم مر ہی نہیں سکتے ہو، قبر تمہیں آگوش میں اپنے لے ہی نہیں سکتی ہے، جب تک کہ ماں باپ کے ستانے کی، ماں باپ کے تکلیف دینے کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں نہ دے دے۔ یہ لا آف نیچر ہے، اور نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ستاؤ گے، اولاد تمہارے اوپر ویسے ظلم کرے گی، یا کسی اور طریقے سے تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ماں باپ کی ستانے کی سزا انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہاں کا سوال یہ ہے کہ حافظ اگر ماں باپ کی ہی غلطی ہو تو، ماں باپ ہی ظلم کر رہے ہو تو پھر بھی نہ ان کو کچھ کہا جائے، پھر بھی انہیں نہ ڈانٹا جائے؟ میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور صاف طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، قوم و ملت کے لائق نوجوانوں، اوپر بیٹھی ہوئی عزتدار میری ماں اور بہن، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ ہم اور آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ ہمارا اور آپ کا خالق، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے جس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا وہ ہمارے کون ہیں؟ ماں باپ۔ پیدا اللہ نے کیا، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ ماں باپ کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں وجود پائے، ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے۔ اسی لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ آئیے میں پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کریم کی، سورہ نساء آیت نمبر 36۔
اللہ तबारक व तआला फरमाता है, पहले अपनी तौहीद बताया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना। ओ लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, लोगों तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत, उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना करो। यानी नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए, रोजे रखो तो अल्लाह के लिए, सजदे करो तो अल्लाह के लिए, रुकू करो तो अल्लाह के लिए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, लोगों तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा उसके इबादत में किसी और को शरीक ना करो। अल्लाह ने अपनी तौहीद बताई, उसके बाद क्या कहा, वबिलवालिदैनि इहसाना, लोगों अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। जिस तरीके से हमारा और आपका माबूद एक है, हमारा और आपका रब एक है, उसी तरीके से हम सब के माँ बाप एक ही होते। अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए, और माँ बाप का हक ये है कि उनकी खिदमत किया जाए। और खिदमत कैसे किया जाए, कुरान ने उसका भी तरीका बताया। सूरह बनी इसराइल आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। यहाँ भी अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान किया, फरमाया, अल्लाह ने साफ साफ, अल्लाह ने कुरान में ये हुक्म दे दिया कि लोगों इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी, इबादत अल्लाह की होगी। उसके बाद फरमाया, वह बिलवालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों, अहदुहुमा एक यानी सिर्फ माँ या बाप, औ किलाहुमा या दोनों, सिर्फ माँ या बाप या उन दोनों में से कोई एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़, तो तुम उन्हें उफ भी ना कहो, हूं भी मत कहो। अच्छा, ये सोचने वाली एक बात है, माँ बाप पहले दोनों होते, माँ और बाप दो, लेकिन कुरान ने पहले एक का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या कहा, अहदुहुमा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई एक यानी सिर्फ माँ या बाप कोई एक, उसके बाद क्या कहा, औ किलाहुमा, या दोनों। होना क्या चाहिए था कि माँ बाप पहले दो होते, दोनों होते, फिर किसी का इंतकाल हो जाता, एक बचता, माँ का इंतकाल हो गया बाप बचा, बाप का इंतकाल हो गया माँ बची, तो पहले दो होते। लेकिन कुरान ने तरतीब उलट दी, क्या कहा, अगर एक या दोनों। क्या मतलब, जब माँ बाप दोनों होते, बेटे की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे, बहू की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे माँ बाप को, तो माँ बाप आपस में बातें करके, आपस में गुफ्तगू करके अपने दर्द को हल्का कर लेते हैं। लेकिन जब माँ का इंतकाल हो गया, बाप बूढ़ा अकेला बचा, बाप का इंतकाल हो गया, बूढ़ी माँ अकेली बची। अब अगर बेटे की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचेगी, बहू की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो अब वो तकलीफ, वो बूढ़ा बाप तो अकेला है, वो बूढ़ी माँ तो अकेली है, अब वो अपना दर्द किससे बयान करेगी, उसका तो जीवन साथी दुनिया में है नहीं, उसका तो लाइफ पार्टनर तो दुनिया छोड़ करके चला गया। अब उस तकलीफ को वो माँ वो बाप किससे बयान करेंगे, अब वो घुटेंगे और उस तकलीफ को सोच सोच करके घुट घुट करके मर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर एक मिल जाए तो ज्यादा हकदार हो, और दोनों मिल जाए तो भी कम नहीं। फिर भी फरमाया, एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, बुढ़े हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम उन्हें उफ भी ना कहो। दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को जान से मार दिया जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ। और सबसे छोटी तकलीफ उफ कहा जाए, किसी को उफ कहा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के मकाम मर्तबे को इतना ऊंचा बनाया है कि सबसे छोटी तकलीफ भी देने से मना किया है। अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो।
बेटा बैठा हुआ है मोबाइल लेकर, कंप्यूटर लेकर के बैठा, वो ऑफिस का काम ऑनलाइन घर पे कर रहा है, लाखों का काम कर रहा है। बाप बगल में सोया हुआ है, बुढ़ा बाप है, लाखों का काम कर रहा है। बाप को प्यास लगी और खांसते हुए कहा बेटे गिलास पानी ले आओ। आपको लाखों का काम छोड़ना पड़ेगा बाप की खिदमत करने के लिए। आपको अपने चेहरे पर, अपने माथे पर पेशानी नहीं लाना है। और अगर आपने कहा, आप काम कर रहे हो लाखों का और बाप प्यासा बेचारा खांसते हुए कहा बेटे गिलास पानी दे दो, और आप उठे और मुंह चिढ़ाते, बुढ़ा भी मांग लिया पानी, आपने मुंह चिढ़ा दिया और गए पानी ला करके दे दिया। बज़ाहिर आपने खिदमत तो की, लेकिन आपने उस कह दिया, काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को उस भी कहने से मना किया है और फरमाया उस वला तनहरहुमा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई और बुद्धों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बात बात में चिढ़ते हैं और उस चिड़चिड़ेपन की वजह से कभी तुम्हें डांट भी सकते हैं, कभी तुम्हें गाली भी दे सकते हैं, कभी बिला वजह तुम्हें मार भी सकते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला तनहरहुमा, तुम उन्हें उनके सामने डांट डपट करके बात ना करना, चिल्ला करके नहीं, प्यार से बात करना। उनके सामने तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, डांट डपट करके बात नहीं करनी है। कैसे करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तरीका बताया। क्या फरमाया? वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, जब भी तुम अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो, जब भी तुम अपने माँ बाप से बातचीत करो तो बड़े प्यारे अंदाज में करो। जब भी तुम अपने माँ बाप के सामने जबान खोलो तो ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे जबान से शहद निकल रहा है, तुम्हारे होठों से फूलों की बारिश हो रही है। जब भी तुम अपने माँ बाप से बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में बात करो। यहाँ तो बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चों की दो मीठी बोल सुनने के लिए कानून की तरफ जाते हैं। मेरे भाइयों, दबदबा बनाओ, गांव में बनाओ, दबदबा बनाओ, अपने शहर में बनाओ। माँ बाप के सामने दबदबा मत बनाओ। माँ बाप के सामने जब भी बात करो तो बिल्कुल उस नौकर की तरह, जो नौकर काम कर रहा हो और काम अपना खराब कर दिया हो और उसका मालिक बड़ा सख्त हो, बड़ा सख्त है उसका मालिक। अब वो डर रहा है कि मालिक के सामने कैसे जाए, काम तो मैंने खराब कर दिया। अब मालिक के सामने गया तो, लेकिन डर डर करके बात कर रहा है, अरे वो गलती से हो गया, डर डर करके बात कर रहा है। इस तरीके से अपने माँ बाप से बड़े प्यारे अंदाज में बात करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। लोगों, अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को अपने रहमत के बाजुओं से ढांप लो। जिस तरीके से आसमान में उड़ने वाला परिंदा, जिस तरीके से हवा में उड़ने वाला परिंदा अपने बच्चों को अपने रहमत, अपने परों से ढांप लेता है, अपने परों में छुपा लेता है और आने वाली बड़ी बड़ी तूफान और आंधी से अपने बच्चे को महफूज कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो, यानी अपने माँ बाप को दुनिया की सारी मुसीबतों से, सारी तकलीफों से बचा लो। यहाँ तो सूरत हाल ये, बच्चा खुद तकलीफ दे रहा है बाप को, बाप खुद परेशान है बच्चे से, बेटा खुद बाप को मार रहा है, वो दुनिया की तकलीफ से कहाँ बचाएगा। हुक्म दिया जा रहा है कि लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो, बाजुओं में ढांप लो। और फिर एक दुआ बतलाई जा रही है, उस दुआ को हर मुसलमान को याद कर लेना चाहिए। फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों, तुम अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करते रहो, ये दुआ अपने माँ बाप के लिए करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आय अल्लाह, हमारे माँ बाप पर तू उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। पता चला आज हम ऐसे जवान नहीं हो गए। हमारे जवान होने में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रहम करम है। आज बच्चा जवान हो गया तो क्या कर, अब्बू आपने किया क्या है मेरे लिए, अम्मी आपने किया क्या मेरे लिए। अगर अम्मी अब्बू ने कुछ ना किया होता, रब्बे काबा की कसम कुरान में ये आयत नाज़िल ना होती। क्या कहा जा रहा है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। देखिए, ये रहम नहीं तो क्या है। एक माँ अपने शीरखार बच्चे को, छोटे से बच्चे को जाड़े के मौसम में लेकर के सोई हुई है। रात के 2:30-3 बजे बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, उसको गीलापन महसूस होता है, उसको ठंडक लगती है, वो रोना धोना शुरू कर देता है।
माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया है, फौरन वहां से उठाती है और उसके गंदगी में, उसकी गलाजत में, उसकी पेशाब किए हुए जगह पर खुद सो जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। ये रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो अल्लाह ने बयान किया। अपने माँ बाप पर को दुआ करो कि जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, अल्लाह तू भी इनके ऊपर रहम फरमा। और एक बात मैं बताता हूं, अल्लाह की कसम, दुनिया में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, दुनिया में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आला लगा करके चेक करता है, बीपी चेक करता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप बताते हो, उसके बाद वो दवा देता है। लेकिन माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। बच्चे के मुंह में जबान है लेकिन वो बोल नहीं सकता, सिर्फ उसको जो आता है रोता ही जाता, उसको रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन माँ ऐसी डॉक्टर है जो बच्चे के रोने की आवाज से ही पता लगा लेती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, पेशाब कर दिया इसलिए रो रहा है, या उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या उसको बुखार आ गया या कोई तकलीफ की वजह से रो रहा है। उसके रोने की आवाज से ही माँ समझ जाती है कि बच्चे को कौन सी तकलीफ हो रही है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। ये रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो कुरान ने बयान किया। वो औरत जिसका चेहरा कभी आसमान के निगाहों ने नहीं देखा, जिसका चेहरा, जिसके गाल को किसी गैर मर्दों ने नहीं देखा, बच्चे को लेकर के ट्रेन का सफर कर रही है, बस का सफर कर रही है, और आपको मालूम ही होगा ट्रेनों में और बसों में ज्यादातर तादाद मर्दों की होती है। मर्दों के बीच में वो बैठी हुई है, शीरखार बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। उसी बीच में बच्चा रोने लगता है, समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। आज तक जिसके चेहरे को आसमान के निगाहों ने ना देखा था, वो माँ ट्रेन के किसी कोने में जाती है, बस के अंदर कोई कोना तलाश करके अपने बच्चे को बस और ट्रेन के अंदर भी दूध पिलाना शुरू कर देती है। ये माँ का रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो कुरान ने बयान किया, वो कुर्रब्बि रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहो कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया था। आज हम अपने लिए दुआ करते, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, अपने दोस्तों के लिए दुआ करते, ऐ अल्लाह हमारे भाई के ऊपर रहम फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। ये केवल आम दुआ हम करते, लेकिन माँ बाप के लिए जब दुआ करने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाज़िल की और फरमाया इस तरीके से अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं अल्लाह के नबी, लोग हिजरत कर रहे हैं, लोग जिहाद में निकल रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। और आपको बताते चलो, जिहाद ये इतना बड़ा सवाब का काम है, इतना बड़ा नेकी का काम है कि अगर जिहाद में जाने वाला शख्स अगर शहीद हो जाता है, शहीद कर दिया गया, तो उसका खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और कयामत के दिन जब ऐसे शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह देखेगा उस बंदे को, तो फरिश्तों को हुक्म देगा, अरे फरिश्तों ले जाओ मेरे इस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इससे मैं क्या हिसाब और किताब लूं, ये तो अपनी जान को मेरी राह में कुर्बान करके चलाया, ले जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। इतना बड़ा मकाम है शहीदों का और जिहाद करने वालों का। लेकिन एक सहाबी जब अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी पूछते ऐ मेरे सहाबी बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है, क्या तुम्हारी माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? वो सहाबी कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, एक हदीस में है कि माँ जिंदा है और एक हदीस में है कि माँ बाप दोनों जिंदे हैं, दोनों बातें इस दुनिया में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नेकी का काम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे सहाबी जा, तू अपने माँ के दामन से लिपट जा, अपने माँ को पकड़ करके चिमट जा, अपने माँ की खिदमत कर, अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश कर। तेरे माँ की खिदमत करना, तेरे लिए माँ की खिदमत करना तेरे लिए जिहाद से भी बढ़कर के है, जिहाद से भी बढ़कर के माँ बाप की खिदमत करना। मेरे भाइयों, और माँ बाप की नाफरमानी करना भी जैसे इसका मकाम है बहुत ऊंचा खिदमत करना, इसी तरीके से माँ बाप की नाफरमानी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है।
چھوٹا نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابی، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتلائیے بڑے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ چھوٹے گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس طریقے سے شرک کرنا ہے، شرک بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ پر ظلم کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک بات میں آج بولتا ہوں، میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ ایک طرف، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو ستانے والوں سن لو، تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی ہے، تم مر ہی نہیں سکتے ہو، قبر تمہیں آگوش میں اپنے لے ہی نہیں سکتی ہے، جب تک کہ ماں باپ کے ستانے کی، ماں باپ کے تکلیف دینے کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں نہ دے دے۔ یہ لا آف نیچر ہے، اور نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا، نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ستاؤ گے، اولاد تمہارے اوپر ویسے ظلم کرے گی، یا کسی اور طریقے سے تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ماں باپ کی ستانے کی سزا انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر دے گا ہی دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ حافظ اگر ماں باپ کی ہی غلطی ہو تو، ماں باپ ہی ظلم کر رہے ہو تو پھر بھی نہ ان کو کچھ کہا جائے، پھر بھی انہیں نہ ڈانٹا جائے؟ میرے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں اور صاف طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تمہارے ماں باپ تم سے وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ، لوگوں اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ پر ظلم مت کرنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تمہارے ماں باپ بلا وجہ، بلا کسی وجہ کے یہ کہے کہ میرا گھر چھوڑ دے، میرا گھر اور اپنے بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ کر کے چلا جا گھر چھوڑ کر کے، تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اپنا گھر چھوڑ دینا، اور گھر چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جانا، لیکن ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ماں نے ظلم کیا، باپ نے ظلم کیا، اس کی سزا اللہ رب العالمین دے دے گا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو سزا دے، ان کو ڈانٹے۔ اتنا بڑا ماں باپ کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے آج کچھ نئی چیز دیکھ لی، روز اللہ کے نبی جب خطبہ دینے کے لیے جاتے تھے تو آمین نہیں کہتے تھے، آج 3 بار آمین بولے، کیا بات ہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، آج آپ نے 3 بار آمین کہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اے میرے صحابہ، جب میں خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر چڑھ رہا تھا اور جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے اپنا قدم رکھا، جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس کو روز میں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ جب جبریل علیہ السلام نے دعا کی تو میں نے کہا آمین، اور جب میں دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کو خوش کر کے، ان کے ساتھ اسے سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کر لے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ پر ظلم کرنے والوں، ظلم کرنے سے پہلے، ماں باپ کو ستانے سے پہلے یہ حدیث ذرا اپنے ذہن میں لے آنا کہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے ماں باپ کے ستانے والوں کے لیے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی اکرم کی آمین ہے، نبی اکرم کی آمین ہے۔ غور کرو، ماں باپ پر، ماں باپ کو ستانے والوں، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے اور نبی اکرم کی آمین ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی
मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल। दूसरी हदीस है अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अब वो सहाबी फिर से पूछ लेते हैं, अरे अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा? अल्लाह के नबी फरमाते हो हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ एहसान करना, जिससे वालिदैन खुश हो, जिसके वो अमल भी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आता और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते, उम्मु का, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तेरी माँ है। वो सहाबी फिर से पूछ लेते, सुम्मा मन, आए अल्लाह के नबी उसके बाद कौन? अल्लाह के नबी फरमाते, उम्मु का, तेरी माँ, दो बार कहे तेरी माँ। वो सहाबी फिर से पूछ लेते, सुम्मा मन, आए अल्लाह के नबी फिर कौन? अल्लाह के नबी फरमाते, उम्मु का, तेरी माँ। चौथी बार वो सहाबी पूछते, सुम्मा मन, उसके बाद कौन? अल्लाह के नबी फरमाते, अबू का, तेरा बाप। इन तीन बार माँ का नाम लिया। तेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, और उसके बाद तेरा बाप। इज्जत एहतराम में दोनों बराबर है, इज्जत एहतराम में दोनों बराबर है। देख लीजिए दुनिया का हाल, अगर एक बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चा यतीम कहलाता है। बाप का इतना बड़ा मकाम है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चा यतीम कहलाता है। और यहाँ हाई स्कूल और इंटर पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं, उन्हीं की किताब से एक वाकया है कि जब तक बाप मौजूद होता है, बच्चे के मेले की सारी मिठाइयां बच्चों की होती है, बाजार के सारे खिलौने बच्चे के होते हैं। एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मेले में लेके जा रहा है, मेला दिखाने के लिए लेके जा रहा है अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके। बच्चा बाप के साथ खुशी खुशी जा रहा है। मेले में जो मिठाइयां दिखती है वो कहता है ये मेरी मिठाई है, इसको मैं लूंगा। जो भी खिलौना उस बच्चे को दिख रहा है वो कहता है ये खिलौना मेरा है, मैं लूंगा। उसी भीड़ में बाप की उंगली छूट जाती है, बाप दूसरी जगह चला गया, बेटा दूसरी जगह चला गया, गुम हो गया। अब बाप को ढूंढता है बच्चा, बाप नहीं मिला, रोने लगा वो बच्चा, रोने लगा। छोटा सा बच्चा है, दुकान वालों ने देखा छोटा सा बच्चा रो रहा है तो उसको अपने दुकान पर बिठा लिया और उसको चुप कराने के लिए मिठाइयां भी दुकान वालों ने दे दी, खिलौने भी दे दिया, लो बेटे ये मिठाई खाओ, ये खिलौने लो, खेलो। लेकिन वो रो रहा है। अब वो अब्बू कह रहा है मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू कहाँ है? मेरे भाई यहाँ से अंदाजा लगाइए। अभी जब बाप के साथ में था तो मिठाई मांग रहा था, बाप के साथ में था तो खिलौने मांग रहा था। अब खिलौने और मिठाई इतने मिल रही है, फ्री में दुकान वाले दे रहे हैं, लेकिन वो अब्बू को ढूंढ रहा है। बाप का भी बहुत बड़ा मकाम है, बाप का भी बहुत बड़ा मकाम है। वो सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी तीन बार माँ का नाम लेते, तीन बार माँ का नाम लेते। और कुरान ने बताया तीन बार, तीन जो माँ का जो दर्जा 3 गुना ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा है? कुरान ने उसकी वजह बतलाई। मेरे भाइयों, मौका मिले, टाइम मिले तो कुरान को पढ़ लीजिए, कुरान को पढ़ा कीजिए। माँ बाप के हुकूक के बारे में नॉलेज होगा, जानकारी होगी। अगर फुर्सत मिले तो कुरान की तिलावत कर लीजिए, कीजिए। मेरे भाइयों, 3 गुना जो माँ का दर्जा बताया गया, वो क्यों बताया गया है? कुरान पर ये सूरह काफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। लोगों, अपने माँ बाप, अल्लाह वसीयत कर रहा है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। अल्लाह वसीयत कर रहा है इंसानों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ उसे सलूक करो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीयत कर रहा है, और वसीयत ये हुक्म के दर्जे से ज्यादा बड़ा होता है। एक इंसान अगर वसीयत कर दे मरने वाला कि मेरे मरने के बाद फला काम कर देना मेरे नाम से, वो इंसान करता है, इंसान की वसीयत पूरी करने के लिए इंसान उसको पूरी करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीयत करता है तो उस वसीयत को पूरा करना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana। लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और क्यों करो? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने
तुम्हारी माँ ने बड़े दर्द के साथ तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी तकलीफ और मुसीबत उठा करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पेट में रखा। अभी कोई चीज मैं आपको दे दूं और वो 1 घंटा एक पोजीशन में लेकर के खड़े हो, 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, लेकिन माँ 9 महीने बच्चे को पेट में लिए हुए सारे काम करती है। झाड़ू लगा रही है, बच्चा पेट में है, नहा रही है तो भी बच्चा पेट में है, वो बर्तन धुल रही है, बच्चे को पेट में लिए हुए है, और उसी पेट के अंदर सारे काम भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला उसी पेट के अंदर बच्चे का आंख बना रहा है, बच्चे का नाक बना रहा है, बच्चे का हाथ बना रहा है, बच्चे का पैर, और सारी चीजें उसी पेट के अंदर हो रही है, और माँ इस पोजीशन में अपने बच्चे को पेट में लिए हुए है, और उसी पेट के अंदर रूह भी फूकी जा रही है। बड़े कर्ज से के साथ माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। ये तकलीफ जो माँ का सबसे बड़ा मकाम बताया गया, वो इसलिए बताया गया क्योंकि ये तकलीफ सिर्फ माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता। ये तकलीफ सिर्फ माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता। और दूसरी तकलीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने पूरे होने के बाद, 9 महीने जब पूरे हो जाते, 9 महीने पूरे कर लेने के बाद तुम्हारी माँ ने बड़े दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ तुम्हें जना, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जना, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े दर्द के साथ तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया। इतनी तकलीफ होती है माँ को जन्म देते वक्त कि अगर उस दर्द को, उस तकलीफ को जमीन के ऊपर डाल दिया जाए तो जमीन की भी छाती फट जाए। एक सहाबी है, अपने माँ को अपने कांधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, उम्रा या हज करवा रहे हैं। एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है, 7 चक्कर हो गए, 7 चक्कर पूरे कर लेने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मुलाकात हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहते हैं, ओ अमीरुल मोमिनीन, ओ अब्दुल्लाह इब्न उमर, मैं अपने माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, मेरे माँ के पैर नहीं है, मैं मेरी माँ लूली है, लेटरिन कर देती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूँ, माँ के लिए खाना भी बनाता हूँ, माँ के कपड़े भी धुलता हूँ, और आज देखो मेरे मोमिनीन, मैंने अपनी माँ को अपने पीठ पर सवार करके खाने काबा का तवाफ भी करा दिया, और अभी मैं सफा मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, उसका सही भी करूंगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैंने तो अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैंने तो अपनी माँ का हक पूरा कर दिया। तो वो सहाबी क्या फरमाते मालूम है? अरे तू अपने माँ की हक की बात करता है, थोड़ा सा खिदमत कर लिया तो तू अपने माँ की हक की बात करता है। तू तो अभी उतना भले ही तू कपड़ा धुलता है, लेटरिन साफ करता है, खाने कांधे पर सवार करके हज भी करा रहा है, अभी तूने अपने माँ का उतना भी हक अदा नहीं किया जितना कि तेरी माँ जब तुझे जन्म दे रही थी, तेरी माँ को जन्म देते वक्त तेरी माँ को जो तकलीफ हो रही थी, और उस तकलीफ की वजह से तेरी माँ ने जो चीख निकाली थी, तेरी माँ ने उस दर्द में जो आवाज निकाली थी, अभी तो उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया, तो पूरी जिंदगी की बात करता है। मेरे भाइयों, ये तकलीफ भी माँ उठाती है। माँ बेचारी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, डिलीवरी का वक्त है, बाप तो बाहर खुशियां मना रहा होता है, वो तो लड्डू का इंतजाम कर रहा होता है, वो तो मिठाई का इंतजाम कर रहा होता है कि अभी तो मैं बाप बनने वाला हूँ, किसी बच्ची का बाप बनने वाला हूँ, किसी बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। उस माँ से जाकर के पूछो, जो माँ अपने आप को मौत और जिंदगी के मामले में अपने आप को झिझोड़ रही होती है, लड़ रही होती है, और आपके इलाके में, आपके गांव में भी ऐसे बहुत से हादसे हुए होंगे कि बहुत सारी औरतें डिलीवरी के वक्त जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से उनका इंतकाल भी हो जाता है, अपने जान को भी दे देते हैं। मेरे भाइयों, ये तकलीफ, ये दर्द सिर्फ एक माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता है। ये दूसरी तकलीफ। और तीसरी तकलीफ कुरान ने बताया, हमलतुम कुरहा व वबातु कुरहा, तेरी माँ ने तुझे 2 महीने तक दूध, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया। ये भी एक माँ करती है, बाप दूध थोड़ी पिला सकता है, माँ पिलाती है दूध। ये 3 काम है जो सिर्फ माँ करती है, बाप नहीं करता है। यही वजह है कि सहाबी रसूल पूछने के लिए आए, अल्लाह के नबी, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तेरी माँ,
तेरी माँ, क्योंकि माँ तीन तकलीफें से जो माँ उठाती है बाप नहीं उठाता। मेरे भाइयों, माँ की खिदमत करो, माँ की बद्दुआ से बचो। माँ की बद्दुआ, बाप की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह की अर्श से टकराती है। जब माँ बद्दुआ कर देती है तो अल्लाह और उस माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, अल्लाह माँ की बद्दुआ को डायरेक्ट कबूल करता है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की बद्दुआ से बचो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी बद्दुआ से बचो। एक पिछले जमाने के, पिछले उम्मत बनी इसराइल के का एक नौजवान है जिनका नाम है जुरेस। जुरेस बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, अल्लाह वाले हैं। ये अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके दूर किसी जंगल में अपनी कुटिया बना के रखे थे, अपनी कुटिया बनाए थे, अपने घर बनाए थे, और वहीं पर वो अल्लाह की इबादत करते थे। बड़े नेक थे, बड़े मुत्तकी थे, वहां पर ये अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन उनकी माँ मिलने के लिए गई, दरवाजे को दस्तक दी, जुरेज, जुरेज मेरे बेटे जुरेज। जुरेज नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज है, नमाज की हालत में है, माँ आवाज दे रही है जुरेज। वो सोचते अल्लाह मैं क्या करूं, माँ की बात सुनूं या नमाज पूरी करूं। दिल में ख्याल आता है ठीक है चलो नमाज पूरी कर लेता हूं, उसके बाद माँ से मिल लेता हूं। जब तक वो नमाज पूरी करते हैं माँ उनकी वापस चली जाती है। दूसरे दिन माँ फिर आती है, दूसरे दिन माँ फिर आई, दरवाजे को दस्तक दी, जुरेज मेरे बच्चे जुरेज मुझसे मिलने आते। और फिर दूसरे दिन जुरेज नमाज में फिर सोचने लगे क्या करूं, माँ से मिलूं या नमाज पूरी करूं। फिर दिल में ख्याल आता है चलो नमाज तो पूरी कर लेता हूं, बाद में माँ से मिल लेता हूं। और जब तक वो नमाज पूरी करते हैं जुरेज की माँ वापस चली गई। तीसरे दिन जुरेज की माँ फिर मिलने के लिए आई और दरवाजे को दस्तक दी, आवाज दी, जुरेज मेरे बच्चे जुरेज। और जुरेज आज भी नमाज में, तीसरे दिन भी नमाज में। वो सोचते क्या करूं अल्लाह, 3 दिन से बार बार माँ आ रही है। फिर सोचते चलो ठीक है नमाज पूरी कर लेता हूं, उसके बाद माँ से मिल लेता हूं। जब तक वो नमाज पूरी करते हैं माँ को गुस्सा आया कि 3 दिन से मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आ रही हूं और बेटा किस काम में है कि मुझसे मिल ही नहीं रहा है। वो उसके जबान पर बद्दुआ आ जाता है, अपने बच्चे को बद्दुआ देती है। जुरेज ने बताया ना कि बहुत मुत्तकी थे जुरेज, बहुत नेक थे, अल्लाह वाले थे जुरेज, लेकिन माँ की बद्दुआ उनको लग गई। माँ ने बद्दुआ दे दिया। क्या बद्दुआ दिया, जुरेज तूने मेरे बात को नहीं सुना है, मैंने तुझे 3 दिन तक आवाज दी, तूने मेरी बात को नहीं सुना है। अल्लाह करे तू किसी तबाइफा का, किसी जानिया का चेहरा देख करके मरी, किसी जानिया औरत का तू चेहरा मुंह देख करके मरे। बद्दुआ का असर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक खूबसूरत और जानिया फाहिशा औरत आती है, फाहिशा औरत आती है, जुरेज के कुटिया में जाती है और कहती है जुरेज मेरे साथ ज़िना करो, जुरेज मेरे साथ ज़िना करो। जुरेज अल्लाह वाले, जुरेज नेक इंसान, उन्होंने मना कर दिया नहीं मैं इतना घटिया काम, इतना घिनौना काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो मुंह बना करके आई थी कि जुरेज के साथ आज ज़िना करवाऊंगी। जब जुरेज ने इनकार कर दिया तो वो जंगल में जाती है और किसी चरवाहे से उसने ज़िना करवा लिया, किसी चरवाहे से उसने ज़िना करवा लिया। और ज़िना करवाने के बाद हुआ ये कि उसको हमल भी हो गया, उसको हमल भी हो गया उसी ज़िना के पैदावार। जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, गांव वालों ने देखा ये तो बगैर शादी के बच्चा इसको हो गया, तो उसने इल्जाम लगा दिया कि जुरेज का बच्चा है, जुरेज का बच्चा ये है। और जुरेज को लोग जानते थे कि बड़ा अल्लाह वाला है, गांव के बाहर कुटिया बना के रहता है, वहां अल्लाह की इबादत करता है, वो कैसे कर सकता है। लेकिन एक जानिया औरत ने इल्जाम लगा दिया जब, तो गांव वालों ने यकीन कर लिया और गए जुरेज की कुटिया को उजाड़ दिया, जुरेज के घर को गिरा दिया और जुरेज को मारना शुरू कर दिया। जुरेज चीख रहे, चिल्ला रहे, और गांव वालों वजह क्या है, मेरे घर को क्यों उजाड़ा जा रहा है, मेरे ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है। गांव वालों ने कहा अच्छा वजह पूछ रहे हो, अल्लाह वाले बन करके अंदर ही इतना घिनौना काम करते हो, शर्म नहीं आती, कुटिया बनाए हो अल्लाह के नाम पर और यहाँ इतने गलत काम करते हो। जुरेज ने पूछा कि वजह क्या है, बात क्या है। कहा बात पूछते हो, ये फला औरत है, इसका एक बच्चा पैदा हुआ है और ये कह रही है कि ये बच्चा तुम्हारा है। जब उन्होंने ये सुना, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। जुरेज 2 रकात नमाज पढ़ते हैं
और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत के पास जाते, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए जुरेज उस बच्चे के पेट को पकड़ते हैं, उसको नोचते हैं पेट को, और उस शीरखार दूध पीते बच्चे से पूछते हैं, बच्चे बता तेरा बाप, असल बाप तेरा कौन है? वो शीरखार दूध पीता बच्चा बोल पड़ता है, जुरेज के इस आवाज पर बोल पड़ता है, अरे गांव के लोगों, अरे कबीले के लोगों, अरे मोहल्ले के लोगों, जुरेज को बुरा भला मत कहो, जुरेज को मारो मत, जुरेज के कुटिया को मत उजाड़ो कि मैं जुरेज का बेटा नहीं हूं, बल्कि फला जंगल के फला चरवाहे का बेटा हूं। लोग शर्मिंदा हो गए, लोग शर्मिंदा हो गए कि इल्जाम इस पर आ रहा था, और शीरखार बच्चा बोल पड़ा। जब तो लोगों को यकीन हो गया कि वाकई में कोई करामत है, और यकीन कर लिए। फिर जुरेज से कहा, सॉरी बोला, माफी मांगी गांव वालों ने, और कहा जुरेज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा, हम तुम्हारे घर को, तुम्हारी कुटिया को सोने का कुटिया बना देंगे। जुरेज ने कहा नहीं, मेरा जैसा पहले था वैसा मेरा कुटिया बना दो, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बताने का सिर्फ एक मकसद कि आबिद जुरेज इतने बड़े आबिद, लेकिन माँ का बात जब नहीं सुने, माँ की बात नहीं सुने और माँ ने बद्दुआ दे दी, तो इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार को भी माँ की बद्दुआ लग गई, माँ की बद्दुआ लग गई। मेरे भाइयों, हम और आप क्या है, कितने बड़े नेक इंसान हैं और कितनी माँ की नाफरमानियां करते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, माँ की नाफरमानी से बचो, माँ की बद्दुआ से बचो। और मैं वालिदैन से भी कहना चाहूंगा कि अपने माँ, अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ ना दे, कभी भी गलत काम कर रहे समझाने की कोशिश करें, और जब भी बद्दुआ निकले तो दुआ के अल्फाज में निकले। आपको एक वाकया में बताऊं, जीता जागता वाकया। इस वक्त जो हरम के इमाम है, खाने काबा के जो इमाम है कारी सुबैस, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर अपनी एक तहरीर शेयर किए थे। उन्होंने लिखा था कि मैं भी बचपन में बहुत शरारती था, मैं बचपन में बहुत शरारत करता था। अभी वो खाने काबा के इमाम है, बचपन में बहुत शरारत करता था। हुआ ये कि एक दिन मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले थे, और मेरी माँ उन मेहमानों के लिए कुछ पकवान पका रही थी, खाने बना रही थी। उस वहां के, उस मुल्क के जो भी मेहमानों के इज्जत के लिए जो भी बनाया जाता हो, पकौड़े और गुजिया, जो भी बिरयानी वगैरह जो बनते होंगे, बना रही थी माँ। और मैं इतना शरारती था कि उस खाने में मिट्टी डाल रहा था। माँ खाना बना रही है मेहमानों के लिए, और मैं इतना शरारती था कि उन मेहमानों के खाने में मिट्टी डाल रहा था। मेरी माँ को गुस्सा आया, और गुस्से में मुझे बद्दुआ दी, और वो बद्दुआ दुआ की शक्ल में दी। क्या दिया कि मैं तुझसे तंग आ गई हूं सुरेश, मैं तुझसे परेशान हो गई हूं तेरी शरारत से। अल्लाह करे तू खाने काबा का इमाम बन जा, तब तू जाकर के सुधरेगा। अल्लाह करे तू खाने काबा का इमाम बन जा। माँ की ये दुआ, ये बद्दुआ जो दुआ की शक्ल में थी, रंग लाई। आज इस वक्त खाने काबा के इमाम, आज इस वक्त वो खाने काबा के अभी भी वो इमाम है। मेरे भाइयों, तो माँ की बद्दुआ से बचो। और माँ बाप से भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दे। अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह आमीन हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा।